हाँ, start, I think. Right. And Mary, okay? Recording start? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, okay. Thank you. Now I am going to show you. I am Neha, your math functions. This is also part 3 of differentiation. If you haven't seen the previous videos, then I box. So let's get started. Let's try and find out what are implicit functions. Here I have two examples in front of me. Both of them are functions in terms of x and y. So if I check out the first function, let me try and express one variable in terms of other. I try expressing, let's say, y in terms of x. After taking y common from these two terms, it could be conveniently done this way. That means y becomes a function of x. Let me try a similar exercise with this one. So if I try to take, let's say, y common from here, I end up getting y as this, but y is not entirely in terms of x. Similarly, if I try expressing x in terms of y, we land into a similar situation. A function of the form fxy is said to be implicit if it is not possible to. Okay, so please, I'm going to explain you the implicit function and how to solve the implicit function. Okay, so according to this definition, I think you have already noted down the definition, no? In through Tata Classic, right? If you want to note down this one, then no problem. What is the definition? And Mary, I am audible. And Mary, okay, Yes, sir. Yes, sir. okay, okay. So a function fxy is said to be implicit if it is not possible to express y in terms of x, right? So in this example, you can see that x cube plus y cube plus 3axy is equal to 0. If you want to express y in terms of x, then it is not possible. Okay, she has taken the y common from here and transfer this x in the right hand side and then divide by y square plus 3x. But what then after dividing through y square plus 3ax, this y square again appear in the right hand side. So it means y is present in right hand and left hand, both hand side. So but what we want to express, we want to express in terms y in terms of x. It means कि जब हम एक्सप्रेस करें तो वहां पर x नहीं होना, y नहीं होना चाहिए इस साइड में, मगर आ रहा है. अगर आप किसी भी तरीके से इसको प्रेजेंट करके देखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, देन यू विल फाइंड द सेम डिफिकल्टी, राइट? सो such type of functions is known as implicit function, right? Because in the differentiation we will discuss 4 5 types of functions. One we have already discussed, that is composite function. Second one is implicit function. Third one is inverse trigonometric function. Fourth one is logarithmic function, and so on, right? So today in this in the continuation of this, we are discussing about this one, implicit function. So now how to solve if this condition comes like that, then how to solve, please give proper attention. Express y entirely in terms of x or vice versa. So the problem is, how do you differentiate such functions? Well, let's see that using an example. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find. Now, suppose you are given this function to be differentiated with respect to x. You know this is an implicit function because you cannot. प्लीज आप साथ में इसको नोट भी करते चलना है ना, नहीं तो लास्ट में फिर आपको दिक्कत है. मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा. Yes. Express one in terms of another. So we differentiate
differentiate with respect to x, if you look at the first term, it is the product of two functions. So derivative of x, which is 1, into the second function as it is, plus x as it is into derivative of y, which is again 1, but this time, since you are differentiating with respect to x, and the variable is y, therefore you get dy upon dx according to the chain. Okay, this point is very important, right? Because we are differentiating this first term x into y, and here we are applying the multiplication law. According to multiplication law, there are two functions x and y. So when we differentiate x and y, then we will apply the first function differential of second plus second function into differential of first, right? According to that, when we differentiate y, then very careful, y we will write dy by dx because we are differentiating with respect to x. अगर आप केवल इसको ऐसे ही 1 लिख के छोड़ देंगे, then your answer will be wrong. Similarly, y square gives us the derivative 2y, but once again, since you are differentiating with respect to x and the variable is y, so it becomes dy into dx. Moving on to the right side, derivative of tan x with respect to x is simply secant square x. Plus, derivative of y is 1 into once again dy by dx. Now we have clubbed all the terms containing dy by dx, brought them to one side, and the rest of the terms I am taking to the right side. So secant square x minus y. Your final dy by dx in this case is this. Please note down. This is the question based on implicit function, right? And it is very useful in the next exercises also, because the differentiation of y is little bit confusing. So please, okay. So should I proceed for the next? Yes, sir. अगर किसी ने नहीं किया तो please unmute and tell me so that I can wait. Okay, चलिए next. So this is very easy. Very कि you have to simple. जब y का differentiate करें तब बहुत ध्यान रखें और y dy by dx take common in one side and other in the right hand side. Then finally you will get the answer. Wasn't that simple? So the trick is, do not try to express one function in terms of other variable. Simply differentiate it and use chain rule wherever required. Now looking at this second example, once again the situation is similar. You have to evaluate dy by dx. So do not even try to fix the terms, you can directly differentiate. To know sine square y is the same as sine y whole square. It is of the form derivative of x square, which would be 2x. So here the derivative of sine y whole square would be 2 sine y. But we notice that the function is sine y. So you differentiate this sine y, you get cos y. Now you notice the function is y, whereas we wanted to differentiate with respect to x. So further you get into dy by dx. देखिए the how beautifully she has explained the differentiation of sine square y. First, you can write this one sine square y as sine y whole square, and we can apply this formula dy by dx of x raised to the power 2. 2 is in front and 2x. With the help of this one, we can differentiate sine y square. So 2 sine y. अभी simple 2 sine y आएगा. Then we will differentiate sine y. तो ये हो जाएगा कितना? This will be the cos y. अब इतने पर नहीं छोड़ना है, because we are differentiating with respect to y, and here the function is given in y. We are differentiating with respect to x, and this is the function is of y, sine square y.
So we will differentiate it and we will write dy by dx. Please. This is cos of xy. So cos has a derivative minus sine of xy. But when you move अब ahead, देखिए, this is also the cos x into y is inside the angle. This is the angle x into y, है ना? So differential of this angle is also very important. you realize the function was xy. So you need to differentiate that. It is once again the product of two functions. So derivative of x, which is just 1, into y as it is, plus x as it is into derivative of y, 1 into dy by dx. And the right side is pi, which being a constant is left 0. So we repeat the process of clubbing the terms with dy by dx now. Any difficulty in this step? So please unmute your mic and ask me. If anyone is having any doubt in this step, so please ask me. No? Okay. So continue. And Mary, am I Yes, audible? sir. Okay. 2 sine y cos y becomes sine 2y, and if I open the bracket, the term containing dy by dx is taken with it, and the remaining term is minus sine xy, which I push to the right side to make it sine of xy. Therefore, dy by dx becomes sine of xy whole upon sine 2y minus x sine xy. So moving ahead with the third y whole upon. Please note करिए इसे. And one thing is very important. This y sine xy into y, it's better if you will write it before sine this y. तो y into sine xy. Otherwise करते करते स्टूडेंट क्या कर देगा, इसको भी एंगल में ही लिखने लगेगा 2-3 टर्म्स के बाद में. ऐसा नहीं करना. ये y is not in the angle. This y, this is separate. So in the beginning of sine you will write y, right? Y sine xy. नोट कर लिया सबने? Sine 2y minus x sine xy. So moving ahead with the third. This is third question. पिछला क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में any difficulty to understand the सेकंड लास्ट स्टेप. सर वो सेकंड लास्ट स्टेप बता दीजिए. सेकंड लास्ट स्टेप लास्ट क्वेश्चन की. सेकंड लास्ट स्टेप ओपन किया है उसने ब्रैकेट. देखिए आप, ये आप इसकी बात कर रहे हैं, दिस स्टेप. यस सर. सर नीचे वाली. ये वाली. अच्छा देखिए. Yes, और इसको मैं, ओके वेट. देखिए उसने क्या किया है कि इसको bracket the term containing dy by dx is यहाँ तक तो क्लियर है ना कि ये इस स्टेप का डिफरेंशिएशन यहाँ तक क्लियर है, राइट? अब Yes, इसके sir. बाद नेक्स्ट इज, अब हमको क्या करना है, हम dy by dx को एक साथ सेपरेट कर रहे हैं इन द लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी चीजों को हम कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट हैंड साइड. इसके लिए उसने क्या किया हुआ है, ये ब्रैकेट ओपन किया है उसने. ब्रैकेट ओपन करके ये देखिए, एक ये ब्रैकेट यहाँ पर dy by dx एंड अनदर dy by dx यहाँ पर है. जब व्हेन शी विल ओपन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई साइन एक्स वाई इनसाइड, तो एक ये देखिए, ये नीचे जब आफ्टर टेकिंग dy by dx कॉमन, ये वाला साइन एक्स वाई मिल रहा है, ये x ऑलरेडी प्रेजेंट, तो x इंटू साइन एक्स वाई, और इसके साथ में इस dy by dx के साथ में यहाँ पर आपके पास में कितना आ रहा, ये 2 sin x cos y था, जिसको कि मिला करके साइन 2 sin y cos y था, विच विल वी कैन राइट एज sin 2y. इसलिए वो sin 2y आया. अगर किसी को डाउट है तो sin 2y कहाँ से आया, क्योंकि वहां पर वो 2 sin y cos y, उसको हम sin 2y लिख सकते हैं. with it, and the remaining term is minus sine xy, which I push to the right side
to make it sine of xy. Therefore, dy by dx becomes sine of xy whole upon sine 2y minus x sine xy. आ गया था अनुराग? अनुराग Yes, sir. Whole upon Yes, sir. I am. अब क्लियर है? ओके, Yes, चलिए sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. sine 2y minus x sine xy. So moving ahead with the third question, once again you differentiate with respect to x. Look at the first term. Once again, we need to apply the product rule, which gives us first derivative of x cube is 3x squared into y squared as it is, plus first term x cube as it is into derivative of y square, which would be 2y. And now by this time you would have understood, we further multiply this with dy by dx is equal to, now if you remember from the previous video, log of अच्छा देखिए, ये दिस इज log x plus y, राइट? यू कैन नॉट ओपन द ब्रैकेट. ऐसा नहीं कर लेना कि आप इसको लिख लें log x plus log y. ऐसा नहीं होता है ये. ओके, रिमेंबर दिस. हाँ, कि log x plus y you cannot write is log x plus log y. ये x plus y पूरा एक क्वांटिटी है, जैसे log x लिखते हैं, same as this is x plus y. x plus y, the derivative would be 1 upon x plus y. But once again, x plus y was not a standard function, so you need to differentiate this further, and we get derivative of x is simply 1 and derivative of y is 1 into dy by dx. We get 1 plus dy by dx plus derivative of sine is cos e raised to power x, and further differentiating e to the power x with respect to x again gives us e to the power x. Please note here it is already x, so you do not have to differentiate it further, or even if you do, you are just getting 1. However, had it been y, you would have gotten an extra dy by dx. You get dy by dx. ये स्टेप क्लियर है सबको? फर्स्ट स्टेप इज क्लियर? Yes, sir. किसी को डाउट हो तो अनम्यूट करके बोलिए. नहीं है? अब देखिए, इसके बाद का स्टेप आप खुद कर सकते हैं. इसको अगर आपने नोट कर लिया है तो अब आपको सिंपल क्या करना है, ये इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है? डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट इधर पर डिवाइड कर देना है एंड नथिंग एल्स. तो देखिए, शी हैज टेकन डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, राइट? ये यहाँ ट्रांसफर करके ये कॉमन लिया, अदर टर्म्स उसने इस साइड ट्रांसफर कर दिए, and now in the next term she will divide the whole right hand side by this one, right? Check it. And take the terms containing dy by dx and the rest of the terms on the right side. Now the process is the same. Your dy by dx is your right side divided with this entire term. We have another question here. Let's try to tackle. Okay. प्रीवियस आया क्वेश्चन समझ में आपके? आपने नोट किया था? नोट सारे लोगों ने नोट कर लिया? सर एक बार तो पीछे कर दीजिए, पर मैं नोट नहीं कर पाया. अच्छा, कितने लोग नोट नहीं कर पाए? ओनली अनुराग कि और भी लोग हैं? कर रहे हैं बाकी लोग नोट ना भाई, प्लीज, दिस इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये नोट करिए जल्दी. दिस इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं केवल यहाँ से आपको बोल सकता हूँ, करना आप ही को पड़ेगा. हार्दिक आया है? हार्दिक इज प्रेजेंट? हार्दिक? No, sir. हार्दिक? हार्दिक नहीं है? नो. No, sir. ओके. संध्या? संध्या? Yes, sir. Yes, sir.
बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही? पूछती नहीं हो कुछ तुम लोग, कुछ भी नहीं बोलते हो, पूछा करो। हर टर्म क्लियर हो रही है क्या? ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, है ना? सर वो मैंने पिछली क्लास सर अटेंड नहीं की थी, तो अभी कोशिश कर रही हूँ सर समझने की। क्यों नहीं अटेंड की थी, रीजन? सर वो कुछ काम तो डॉक्टर के पास गए थे सर। ओके ओके। मोहम्मद का नाम लेना कोई मतलब है क्या? मोहम्मद है? रहते ही नहीं है मोहम्मद। ओके चलिए, ओके कंटिन्यू, आगे चलें। सर एक डाउट है सर। Yes, sir. हाँ बोलिए सर बोलिए, वेरी गुड। यहाँ पर माइनस ई एक्स वाला वहाँ पर माइनस कहाँ से आया सर, वो सेकंड नीचे? ये वाला? ये सर वही। ओके देखो बेटा, क्या क्या है कि अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये इसने ब्रैकेट ओपन किया था इसको, ठीक है? जी ओके, और ये cos dy बाई डी एक्स को इस साइड ले गया था, हाँ ठीक है। ये देखो इसका डिफरेंशियल किया था ना उसने, cos का डिफरेंशियल किया था। नहीं हाँ देखिए, साइन का किया था तो cos आया था, साइन का किया था तो cos आया था, और ये था नहीं, मेरे ख्याल से तुम सही बोल रहे हो, इट शुड बी पॉजिटिव आई थिंक, क्योंकि यहाँ डिफरेंशियल तो ओवर यहीं पर हो गया था, केवल यहाँ पर उसने क्या किया है, ट्रांसफर किया है। कि भाई और किसी कोई बोलेगा, ये प्लस ही होना चाहिए ना नेक्स्ट स्टेप में? प्लस होना चाहिए था Yes, सर। sir. यस सर, प्लस होना चाहिए था सर। प्लस होना चाहिए था, क्योंकि भाई यहाँ डिफरेंशियल तो यहीं पर एंड हो गया, ठीक है ना? अपन ये भी नहीं कह सकते कि कॉस का डिफरेंशियल करते तो माइनस आता, ऐसा नहीं हुआ है। वेरी गुड, राकेश बोल रहा था शायद, क्या राकेश, है ना? हाँ गुड। ये देखिए ये प्लस होगा भाई, इसको नोट करिए, ये इट शुड बी पॉजिटिव। देखिए उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, dy by dx is your right side divided with this entire term. We have another उसने question दिखाया here. नहीं है, ठीक है वही हो, Entire term. केवल इतना ही छोड़ We दिया have उसने। another ओके ठीक है, तो वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा, आप उसको नोट करने में उसे पॉजिटिव करिए, और उसको डिवाइड करने में आप उस तरीके से करेंगे, ठीक है? ओके देखिए, मैं आपके बुक के कुछ इस एक्सरसाइज के अपन क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना? बुक में किस तरीके से उसने किए हैं। ओपन योर बुक, 5.3 एक्सरसाइज, पेज नंबर 169। ओपन कर लिया सबने? पेज 169, यस। हाँ, अब देखिए पेज 169 पर मैं आपको इसमें अपने बुक के क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि आप हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर बुक। राइट, yes, this is next exercise. Okay, now 5.3 exercise, right? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्लीज, इट इज गिवन दैट 2x plus 3y is equal to sin x, राइट? और बोल रहा है डिफरेंशिएट। इसमें तो बहुत इजी था कि इस ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या? दिस फंक्शन इज इम्प्लिसिट फंक्शन? नो सर। व्हाई व्हाई? है सर। सर आइसोलेट हो जाएगा उसमें एक्स, वाई वाई आइसोलेट हो सकता है। मतलब ये कौन बोल रहा है? यहाँ दिख नहीं रहा, आवाज किसकी है? जी यस। श्रेयस। हाँ आइस मतलब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं वाई को, श्रेयस यस है सर। ना? और दूसरा कौन बोला था कि नहीं है? देखिए यहाँ पर देखो सर मैं गोविंद। हाँ गोविंद, गोविंद इफ यू गिव प्रॉपर अटेंशन हियर ना, तो ये क्वेश्चन जो है इम्प्लिसिट नहीं है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हाँ वी कैन
फाइंड द वैल्यू ऑफ y सेपरेटली। देखिए हम y यहाँ रख सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सीधा कर सकते हैं कि sin x माइनस 3x अपॉन 3 कर सकते हैं, पॉसिबल था, ठीक है ना। यस सर। तो वैसा वाला ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि x और y को हम सेपरेट नहीं कर पाए, वैसा नहीं है, राइट। तो उसने ये ऐसा नहीं बोला, उसने केवल बोला था फाइंड dy बाय dx। तो अब आपको अपना माइंड अप्लाई करना है कि अगर इम्प्लिसिट आ रहा है तो आपको उस तरीके से सॉल्व करना है। मगर ये तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन देखिए उसने कैसे किया है, यू कैन गिव प्रॉपर अटेंशन हियर। ये हो गया, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3y इज 2 आ जाएगा, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, एंड डिफरेंशियल ऑफ 3y इज 3 dy बाय y। बस आप इस बात पे ध्यान रखना, मैं यहाँ पर स्टूडेंट रॉन्ग करता है, आपको ये चीज बहुत ध्यान से करनी है, जब भी y का डिफरेंशियल आएगा यू शुड राइट, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम यहाँ पर अगर लिखा होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू y से अगर आप कर रहे होते देन यू विल राइट 1, फिर x में आप लिखते dx अपॉन dy उसमें जाता, ठीक है कि नहीं, ओके। मगर बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वेन एवर y इज देयर एंड यू differentiate y, then you should write dy by dx. This is very 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 important term, है ना, बहुत छोटा सा है मगर यहाँ मिस्टेक कर दो, है ना, इसको ध्यान रखना। अरे डाउट था हाँ बोलिए सर, अगर रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू y होता हाँ सर, तो सर क्या हम 2 के पास dy अपॉन dx प्लस 3 लिखते अगर तो भी यही रहता? नहीं, अगर हम इधर पर अगर हम लिख रहे होते ना कि विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना, ये जो हमने अभी विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा है, इफ वी विल राइट विथ रिस्पेक्ट टू y, तब क्या होता, जो कंडीशन अभी हम y में अप्लाई कर रहे हैं ना कि y जहां आएगा तो हमको dy बाय dx लिखना पड़ेगा, तो वो चीज किस पर एप्लीकेबल हो जाती, x पर। किस पर एप्लीकेबल हो जाएगी वो चीज, x पर। व्हेन यू विल डिफरेंशिएट x, तब आप लिखते हैं उसको dx अपॉन dy। जैसे अभी y का कर रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे, dy बाय dx। x को हम, x का डिफरेंशियल तो सिंपल हम 1 लिख देंगे, राइट। और cos में तो ठीक है, बाकी सब, मगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर y के रिस्पेक्ट में आप लिख रहे होते तो फिर x जहां होता वो उसका डिफरेंशियल फिर आपको dx अपॉन dy लिखना पड़ता। ओके अनुराग, क्लियर है बात? यस सर। ओके, सारे लोगों ने नोट कर लिया इसे? यस सर। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये है फाइंड dy बाय 2x प्लस 3y। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल, एंड वही क्वेश्चन है क्या उसने लिख दिया, फिर से देखना। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y है। ओहो, बहुत छोटा सा डिफरेंस है केवल यहाँ पर, ठीक है। आप खुद करिए, मैं आपको इसको हाइड कर रहा हूँ। एवरीबडी विल सॉल्व द क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज यू योरसेल्फ विल सॉल्व एंड देन आई विल शो यू द आंसर एंड यू चेक योरसेल्फ, है ना। ईमानदारी से आप करिए और देखिए कि हालांकि बहुत इजी है मगर तब भी आप प्रैक्टिस। हाँ यस सर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन cos y माइनस 3। अच्छा, अभी अपन दिखाते हैं आंसर, आप उसको रखिएगा, मैच करिएगा। हाँ, 2 times you get dy by dx और 1 times? सर उसमें पहले हो जाएगा 2 इज इक्वल टू cos y dy अपॉन dx माइनस 3 dy अपॉन dx, तो 2 बार हो जाएगा, फिर कॉमन ले लेंगे। अच्छा, यहाँ भी dy by dx मिला आपको और यहाँ भी मिल रहा है ना, माने y के 3y का डिफरेंशियल करने पे भी मिल रहा होगा dy by dx, यही किया ना श्रेयस? यस सर। हाँ गुड। सारे लोग सर हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे या y भी कर सकते हैं? x ही करिए बेटा, विद dy। उसने आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड dy by dx, ठीक है, तो जो नीचे है ना उसके रिस्पेक्ट में आपको करना है, ठीक है। dy by dx बोला है उसने क्वेश्चन में, ये देखिए स्टार्टिंग में ही है फाइंड dy by। चलिए अब हो गया, इतना टाइम सफिशिएंट है फॉर दिस क्वेश्चन, और ओरली ही बहुत से लोगों ने कर लिया मुझे ऐसा लग रहा है। और देखिए 2x इज वेरी इजी,
ये हो गया 2, 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉमन ले लिया है और ये डिवाइड कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आ रहा। सभी का आ गया? श्रेयस द सेम आंसर? यस सर। ओके, और कोई बोलिए भाई। हार्दिक? यस सर, आ गया सर। हाँ ठीक है ना। तो देखिए बस उतना ये इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। अपन ने इससे पहले जो एक्सप्लेन किए मैडम ने वो बल्कि थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, इसलिए आपको ये इजी लगेंगे। चलिए इसको करिए जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन, ax plus by square cos y, do it fast। सारे लोगों को करने भाई। अनिष्ठा आ रही? अनिष्ठा इज देयर? सर हो गया। ओके वेट वेट, अनिष्ठा यस सर। आप कर रही है बेटा? यस सर, कर रही हूँ। क्लास तो पूरी अटेंड करिए ना आपने? यस सर। हाँ, बी रेगुलर, बी सिंसियर एवरीवन प्लीज, है ना। ओके, मोहम्मद आए क्या लौट के? नो, वेरी बैड। चलिए ओके, सबका हो गया क्वेश्चन कंप्लीटेड? शुड आई शो यू द आंसर explanation students? And Mary? Yes sir. And Mary, Yes, sir. you got the answer? यस सर। ओके चलिए मैं दिखाता हूँ। हाँ देखिए, दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स। अच्छा वन मोर थिंग, आपको ना थोड़ा सा मेथड भी जैसा वो लिख रहा है ना, आपको ध्यान रखना है। आपको कम से कम ये लाइन तो लिखनी ही है। कौन सी वाली? ये ऊपर वाली नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं। ये डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आप अपनी हैबिट में लाइए लिखना, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन यू डिफरेंशिएट इट। ओके, तो देखिए ए एक्स इज ए, बी वाई स्क्वायर इज, ये आ गया 2y, इसका y स्क्वायर का होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। इसने ये अलग अलग इन टर्म्स को समझाया, मगर आपको ऐसे इक्वेशन 1-2 बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यू कैन डिफरेंशिएट कि ये हो गया a and this is 2y dy by dx, and differential of cos y is minus sin y dy by dx. Taking common dy by dx, now you everyone please check your answer whether your answer is the same answer or not. किसी का अगर रॉन्ग है तो आप चेक करिए कि क्यों रॉन्ग है। नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू। चलिए मैं प्रोसीड, शुड आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन? हाँ चलिए, इसको आप ही को करने हैं। 10x and y is outside, it is not in the angle, this y, don't confuse, this y is separate। हाँ, एंगल नहीं है 10 का, एंगल इज ओनली x। you differentiate। आ गया सर। और भी लोगों को बोलने दो। गोविंद? हो गया सर। यस सर, बस 2 मिनट सर। हाँ। अनुराग? फिर कर रहा हूँ सर। मैं बहुत से लोगों का नाम नहीं लेता तो वो ये ना सोचें कि मुझे नहीं करना है। ओके हाँ आ गया सर। ठीक है। ओके ओके वेरी यस सर, हो गया सर। गुड। चलिए मैं नेक्स्ट उस पर इसका आंसर आपको शो करता हूँ। एक्सप्लेनेशन चेक करिए आप whether your answer and book answer is same or not। देखिए
ये आपको आप कितने लोगों ने ये लिखा है कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ईमानदारी से? वेरी गुड। यस सर मैंने भी लिखा। हाँ हाँ सर लिखा है गुड गुड, सर। ये हैबिट बेटा लानी पड़ेगी, बिकॉज बोर्ड ना क्या करता है, छोटी छोटी चीजों में मार्क्स डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, अगर आप 100 मार्क्स के लिए फाइट कर रहे होंगे ना, तो फिर वो इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देता है। अगर 33 के लिए फाइट करेंगे तो वो छोड़ भी देगा कि चलो भैया किसी तरीके से 33 मार्क्स आ जाने दो। ठीक है, मगर यदि अपन 100 के लिए फाइट कर रहे हैं ना, तो ये सारा जो आप देखिए पिछले साल की जो भी आंसर शीट्स दिखाता है, कितने परफेक्ट रहते हैं वो। ठीक है, आप भी वैसे ही बनना है आपको भी। ओके, सो ये देखिए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और 10x प्लस, इसका ये डिफरेंशियल किया एक्स वाई, ये प्रोडक्ट रूल लगाया। आप चेक करिए वेदर योर टर्म इज ऑल्सो सेम। दिस वन वाई स्क्वायर का 2y dy by dx, 10x is sec square x dy by dx. Then simple taking common dy by dx and this is the answer. कितने लोगों का मैच कर रहा है आंसर? सबका कर रहा है? यस सर मेरा तो। जिसका रॉन्ग है यस वो भी सर। बोल दो एक आध कोई। हाँ सर। किसी का तो रॉन्ग हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। यस सर। कोई नहीं बोलेगा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए वन मोर क्वेश्चन, राइट। देखें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ही को सॉल्व करना है। दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस, अरे बहुत इजी है यार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये हाँ, so simple, do it fast. इस तरीके से शो करने में आप कर पाते हैं ना क्वेश्चन स्टूडेंट्स? यस सर। अंडरस्टैंड, माने कहीं इनके एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत जाए तो आप पूछा करिए। यस सर। इसीलिए उसके सॉल्यूशन दिखाता हूँ कि आप खुद भी करें और इसमें से देखें। हाँ चलिए, तो मैं इसका आंसर शो कर रहा हूँ, हाँ, बिकॉज द क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। तो ये इसका है, ये अपन ने डिफरेंशिएट एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन ये दिस इज द आंसर। ये माइनस साइन इज देयर, है -2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। राकेश आपके आंसर आ रहे हैं? राकेश? यस सर, गुड आ रहा है। गुड गुड। राकेश बस थोड़ा सा वो राइटिंग वर्क पर वर्क करना है, हाँ यस सर। है ना। मेरे को एर्थ का ही ध्यान है अभी तुम्हारा, ठीक है। अब आई होप कि थोड़ा सा और बढ़िया स्टेप बाय स्टेप और क्लियरली लिखा करो, है तुम करते अच्छा हो, बस वहां पर फोकस करना। हाँ जी सर। चलिए, सबका आंसर यही है भाई, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। सिंपल है, नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन। हो गया सर। वेरी गुड। संध्या, ये क्वेश्चन तो आज के ही एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड है बेटा, पिछला इससे कुछ भी कोरिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए आप उसको ऐसा मत लेके चलना कि मैं पिछली क्लास में नहीं थी तो ये कैसे बनेगा। अभी जो मैंने आज एक्सप्लेन किया उसी पर बेस्ड है।
शरद, शरद, not present. Okay. Commerce से 2 students are absent. शरद and one more कुंभराज वाला, क्या नाम है उसका? सर आ गया। आ गया? Okay. Good. चलिए. So check the answer. देखिए. Step by step you should also solve, है ना? How nicely the book has solved the question. देखिए. And at the last, सबका आ गया कि मैंने जल्दी दिखा दिया कुछ आंसर? शो करूं क्या? हाँ सर। यही आंसर है से? यस सर यही है। ओके. माइनस आउटसाइड 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर. ओके. चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th वन. ये किया हुआ है अभी, उसमें आप मैडम ने भी इसको शो किया था, तब भी आप करिए इसे जल्दी, शायद आप फिर से करिए इसे. डू इट फास्ट. साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई. सर 0. आंसर इज 0. यस सर. What you want to tell me, that differentiation of pi is 0 or the whole result will be 0? क्यों भाई, आप पाई का डिफरेंशिएशन 0 बता रहे हैं कि द होल dy by dx is equal to 0? सर पूरा आंसर dy by dx 0 आएगा. अच्छा. चलिए भाई, और भी कोई बोल रहा क्या कि 0 ही आएगा? नो सर, मेरा तो आ रहा है y साइन एक्स वाई अपॉन एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई. हाँ, ये जो बोल रहा है ना, आमिर बोल रहा था 0 शायद, है ना? आमिर, आपने कुछ गलत सर फनेंद्र बोल रहा था सर. नहीं सर, मैं बोल रहा था फनेंद्र. फणेंद्र, आपने बेटा कुछ गलत किया है उसमें. आप ना इसके डिफरेंशियल में मिस कर गए. डिफरेंशियल ऑफ cos एक्स वाई में आपने मिसिंग कर दिया, क्योंकि 0 इज नॉट पॉसिबल. सर 1 मिनट मिल गया. हाँ, करिए करिए. आई विल वेट फॉर यू. निवेदिता, निवेदिता, यस सर. आंसर आ रहे हैं आपके? यस सर. अभी इसका आंसर आ गया प्रेजेंट क्वेश्चन? हाँ सर, बस आ ही रहा एंड. हाँ. ओके. बोलिए, अगर इफ क्वेश्चन इज कंप्लीटेड देन टेल मी, देन आई विल शो यू. Done? यस सर. Other students also? और प्लीज अभी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ये वाला क्वेश्चन.
Yes, sir. ये वाला ओके ओके, मैं शो करता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। हाँ देखिए आप, देखिए दिस इज द क्वेश्चन। साइन स्क्वायर, हाँ, साइन स्क्वायर y cos xy is equal to pi, differentiate with respect to x. So you can write like this. Then differential of sine square y, sine square y can be written as sine y whole square, है ना। तो उसका आप जब करेंगे तो 2 will you can write in the front, right? So 2 into sine y, then differential of sine y is cos y, and differential of y dy by dx। तो देखिए ये इसने एक्सप्लेन किया, डिफरेंशियल ऑफ साइन स्क्वायर y 2 sin y, ये सबको समझ में आ रहा है। y दिस इज 2 x रेज टू द पावर n की कंडीशन से, दिस इज 2 sin y into d by dx ऑफ sin y, sin y का ये होगा डिफरेंशियल इज cos y, and then because this is y, function of y, then you have to write differential of y is dy by dx. Similarly, the second term cos xy, this is the multiplication of x into y. Very, now you can give the attention here. Cos, differential of cos is minus sin xy dy by dx of xy. Okay, and ये तो हुआ केवल cos का भी हुआ, तो ये आया। अब x इंटू वाई का करेंगे हम, ये दो फंक्शन है, तो इस पर होगा। तो ये देखिए इसने क्या हुआ है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, y को फर्स्ट मान लिया उसने, डिफरेंशियल ऑफ x इज 1 प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, और फिर ये इस तरीके से हो रहा है, इसने ये अंदर मल्टीप्लाई कर लिया इसको और ये ओपन कर दिया ब्रैकेट। ठीक है, आप तो डायरेक्टली करें, उसने स्टेप बाय स्टेप समझाया, बहुत बढ़िया किया, बट यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली। सो साइन स्क्वायर y is 2 sin y cos y dy by dx. Similarly, differential of cos x into y is this one. Separate the dy by dx, that is taking common dy by dx, and transfer other terms, remaining terms in the right hand side, that is minus y sin xy will change in plus y sin xy, and then you divide it by this one. So then you will get the value of dy by dx. अभी भी नहीं आया समझ में भाई? कहीं पर प्रॉब्लम है इसमें तो अभी भी पूछिए, then again I will explain you. आगे सर हो गए सर। ओके, सबसे ठीक है। तो अभी तो मुझे और भी कुछ क्वेश्चंस दिखाने थे, मगर अब टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, राइट? देन आई एम गोइंग टू स्टॉप द क्लास। मोस्ट प्रोबेबली अगेन टुमारो आई विल शो यू सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस वन। देन इनवर्स पर फिर बताऊंगा, इनवर्स के लिए पूरा इनवर्स ही समझाऊंगा आपको, ठीक है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझाऊंगा और फिर अपन इस पर करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो आगे है भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो वो हो जाएगा एंड देन, ठीक है? ओके, तो वेट, आई एम गोइंग टू right, I am going to stop the sharing